चलिए, स्वागत है आप सभी का मॉक टेस्ट पेपर पार्ट 2 ऑफ IBS के इस सोल्यूशन वीडियो में। अच्छा, थोड़ी सी तबीयत डाउन है, गला ख़राब है तो वॉइस थोड़ी कम आएगी मेरी, बट आई विल ट्राई टू बी एज एनर्जेटिक एज पॉसिबल बिकॉज तबीयत डाउन है लेकिन हौसले बुलंद है। एग्ज़ाम आ चुकी है ना। 1 और 2 इस पेपर की 1 और 2 की स्टडीज़ हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। 2 थोड़ी बड़ी है, फिर 3, 4, 5 छोटी छोटी है, तो एक वीडियो में हो जाएगी। ठीक है, बिना कोई टाइम वेस्ट किए सीधा केस स्टडी 1 पे जंप करते हैं। केस स्टडी 1, उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं है। नया कॉन्सेप्ट नहीं है मतलब ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि एक नया कॉन्सेप्ट नहीं है, कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक है, FCRA की केस स्टडी है और FCRA एक रूल बेस्ड एक्ट है। ठीक है, तो इसमें बहुत सारे रूल्स है, बहुत सारे प्रोहिबिशंस है, बहुत सारे अलाउंसेस है, तो उसको अपन को ध्यान में रख के चलना होता है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं है कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्या है। थोड़ा इंट्यूशन देने की कोशिश करूँगा बट ज़्यादा डेप्थ में घुसने की कोशिश मत करना। ये FCRA के ऊपर ही पूरी केस स्टडी दी है आपको और बहुत ईजी है एज सच। ठीक है, तो पढ़ के आगे बढ़ जाना, एग्जाम में ले जाना, आए तो छाप देना। ठीक है, ज़्यादा टफ नहीं है, डोंट वरी अबाउट इट, सिर्फ नया है आप लोगों के लिए। MCQs। Mr. X is worried that FCRA registration of trust is going to expire in year 2023 itself. Which of the following statement is most appropriate regarding renewal of registration of trust and receipt of foreign contributions under FCRA? ठीक है, देखते हैं। Mrs. C has put forth her views on certain expenditures. However, she is unsure about the legal footing of her view and related matters described in the case study. Which of the following statement is correct? वापस FCRA. Which of the following statement is likely to be correct regarding discussion among trust members for proposed transfer of contribution for carrying out its program described under case study? वापस FCRA. Mr. Z, office bearer of the trust, has approached CM Madhusudan to seek his advice regarding modalities of renewal of registration of trust under income tax law. मतलब सेम ट्रस्ट का इनकम टैक्स लॉ में क्या हो सकता है वो पूछ रहे हैं। Which of the following advice rendered by CM Madhusudan is in accordance with the provisions of the law? ठीक है, देखते हैं। Certification from chartered accountant is required by DBS trust in respect of certain matters under FCRA described in the case study. Which of the following statement is true in this context? देखते हैं। Descriptive questions. Certain matters have been highlighted in the case studies which may have ramifications. Ramifications मतलब consequences of for renewal of trust under FCRA. At the time of applying for renewal of registration of a person under FCRA, central government is empowered to make inquiry in respect of wide range of matters. Discuss those matters. मतलब एक डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा है कि कौन कौन से मैटर्स में सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इंक्वायरी करने का पावर है। Do matters highlighted in the case study fall among such matters? 4 मार्क का क्वेश्चन है। On the basis of overall description of the case study, what factors should be considered by CM Madhusudan while assessing the audit risk of DBS trust during the course of audit for FY 23-24? ये भी 4 मार्क्स का क्वेश्चन है। Assume that during the course of audit, CM Madhusudan suspects that there may be non-compliance by NGO in relation to some aspects of FCRA. How should he proceed? 3 मार्क्स का क्वेश्चन है। What should be the proper advice of CM Madhusudan to Mr. Z regarding implications of proposed sale of a capital asset and acquisition of another capital asset as described in the case study? 4 मार्क्स का DT का डायरेक्ट क्वेश्चन है, बहुत ईजी है। ठीक है, एज आई सेड आप लोगों को FCRA का आइडिया नहीं है इसलिए आपको नया लगेगा, टफ बिल्कुल नहीं है। ठीक है, केस स्टडी पढ़ते हैं। हमने रिक्वायर्ड पार्ट पढ़ लिया। केस स्टडी 1, non-governmental organizations are non-profit entities working as independent of the government. अच्छा, FCRA का थोड़ा बहुत बैकग्राउंड दे देता हूँ। थोड़ा बहुत बैकग्राउंड शायद मैंने दिया है या नहीं, आई डोंट नो। एक क्वेश्चन आया था FCRA का। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रेगुलेशन एक्ट क्या बोलता है कि आप फॉरेन से, फॉरेन मतलब फॉरेन गवर्नमेंट से या फॉरेन इंडिविजुअल से या फॉरेन एंटिटी से कोई भी फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेते हो, कंट्रीब्यूशन मतलब डोनेशन या तो ट्रांसफ़र, तो उसके ऊपर सर्टन प्रोहिबिशंस, रेस्ट्रिक्शंस और कंडीशंस है। क्यों? बिकॉज जब फॉरेन का पैसा एक देश में आता है, फॉरेन का पैसा एक देश में आता है तो एक रिस्क रहता है नेशनल सिक्योरिटी का। सर कैसी बातें कर रहे हो, प्रधानमंत्री जैसी या आप पॉलिटिशियन जैसी बातें क्यों कर रहे हो? समझो, बहुत सारे ऐसे ट्रस्ट होते हैं, बहुत सारे ऐसे NGOs होते हैं, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज़ होती है जो सोशल सर्विसेज के नाम पे आड़े अवड़े धंधे करती है। आड़े अवड़े गुजराती वर्ड है, मतलब आड़े टेढ़े धंधे करती है। जैसे रिलीजियस कन्वर्जन्स के केस आ गए,
जैसे कम्युनल वायलेंस के केसेस आ गए। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट एनी पर्टिकुलर रिलीजियस आइडियोलॉजी, वो मेरे पे कमेंट करके चढ़ मत जाना। आई एम टॉकिंग इन अ जनरल वे, ठीक है। फिर कई कई जगह पे ऐसा होता है कि फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को कोई प्लांट डालना है, लेकिन किसी एक पर्टिकुलर एनजीओ की आइडियोलॉजी के हिसाब से वो प्लांट वहाँ पे नहीं आना चाहिए, और ये कम्युनल लोग होते हैं, कम्युनल नहीं कम्युनिस्ट लोग होते हैं, कम्युनिस्ट लोग वो ऐसा बोलते हैं कि गरीब गरीब इसलिए है क्योंकि अमीर अमीर है, ऐसी फालतू चीज़ें वो लोग सोचते हैं, ठीक है। तो टाटास के साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि वो लोग प्लांट लगाने आते हैं, लेकिन ये लोग प्रोटेस्ट वोटेस्ट करके वहाँ पे प्लांट नहीं लगाने देते, जिससे ओवरऑल एरिया का जो ग्रोथ है वो नहीं हो पाता, ठीक है। तो ऐसी कोई चीज़ों पे अगर कोई एंटिटी इन्वॉल्व है और उनको बाहर से पैसा मिल रहा है, मतलब बाहर से कुछ लोग ऐसा चाहते हैं कि हमारे देश का डेवलपमेंट ना हो, और ऐसे बाहर से अगर पैसे आ रहे हैं तो वो नेशनल सिक्योरिटी या नेशनल डेवलपमेंट के लिए थ्रेट रहता है, और ऐसी चीज़ों को ही कंट्रोल करता है एफसीआरए। अगर कहीं से भी किसी को बाहर से कंट्रीब्यूशन लाना है तो उनको एफसीआरए में रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ेगा, गवर्नमेंट उनकी इंक्वायरीज करेंगी, गवर्नमेंट उनके पैसों को आने जाने का मॉनिटरिंग करेगी। आप बहुत बार न्यूज़ में पढ़ोगे कि इस पर्टिकुलर एनजीओ का एफसीआरए लाइसेंस कैंसिल कर दिया, मतलब उनका जो बाहर का फॉरेन का पैसा पड़ा था वो सीज कर लिया और नया पैसा ना आए, ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है, ठीक है। बात समझ में आई? तो एफसीआरए में ऐसे ऐसे प्रोविजंस है कि कोई नेता बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई पॉलिटिशियन बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई इलेक्शन में खड़े होने वाला कैंडिडेट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, कोई सिविल सर्वेंट बाहर से पैसा नहीं ले सकता, वगैरह वगैरह बातें हैं, ठीक है। ये मैंने आपको एक ओवरव्यू दिया कि एफसीआरए का स्टैट्यूटरी इंटेंट क्या है। क्या क्या है स्टैट्यूटरी इंटेंट? देखो, हर एक लॉ के पीछे एक स्टैट्यूटरी इंटेंट रहता है, ठीक है। लॉ के प्रोविजंस बहुत ज़्यादा डिटेल्ड होते हैं, लेकिन उसका एक स्टैट्यूटरी इंटेंट से आपको पता चल जाता है कि ब्रॉडर व्यू में वो लॉ क्यों बनाया है, किसने बनाया है, किस इंटेंशन से बनाया है। बात समझ में आ रही है? और ये पहले से है लॉ, लेकिन 2014 के बाद इसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रिंजेंट अमेंडमेंट्स किए गए, ठीक है। तो आइए पढ़ते हैं, अब पढ़ते हैं थोड़ा सा। नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस आर नॉट प्रॉफिट एंटिटीज वर्किंग इंडिपेंडेंट ऑफ गवर्नमेंट. UN Department of Global Communication defines an NGO as not-for-profit voluntary citizens group that is organized on a local, national or international level to address issues in support of public good. ये तो की बड़ी बड़ी बात है, ठीक है, कि UN क्या बोलता है, NGO क्या होती है, वगैरह वगैरह. Task oriented and made up of people with common interest. NGOs perform a variety of services and humanitarian functions, bringing citizens' concerns to the government, monitoring policy and program implementation, and encourage participation of civil society stakeholders at the community level. ठीक है, ऐसा नहीं है कि हमेशा ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट होती है, कभी कभी गवर्नमेंट के साथ भी होती है। जैसे बहुत सारे एनजीओ से वो रिवर क्लीनिंग का काम करते हैं, ओशन बीच क्लीनिंग का काम करते हैं, सफाई वगैरह करवाते हैं, तो देयर आर गुड एनजीओज एज वेल, ठीक है। A paper released by World Bank states that NGOs are typically value-based organizations which depend in whole or in part on charitable donations and voluntary services. Because ये NGOs है, इनका कोई बिजनेस करने का मोटिव नहीं होता, तो इनका जो सोर्स ऑफ फंड होता है वो क्या होता है? सोर्स ऑफ फंड डोनेशंस. ये पैराग्राफ काट दो, कुछ काम का नहीं है, सो फार कुछ काम का नहीं है, काट दो, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. NGOs have become very influential and prominent in world affairs, and a substantial chunk of overseas development aid is routed through NGOs. जैसे फॉर एग्जांपल मुझे किसी देश की हेल्प करनी है, मैं बहुत बड़ा बिजनेसमैन हूँ फॉर एग्जांपल, और मुझे किसी देश की हेल्प करनी है, मुझे अफ्रीका के किसी देश की हेल्प करनी है, तो मैं अफ्रीका के NGOs को कांटेक्ट करूँगा और उनको पैसा दूंगा कि आप अपनी पब्लिक के लिए ये पैसा लगाओ, क्योंकि हो सकता है मुझे अफ्रीकन गवर्नमेंट पे भरोसा नहीं है. तो ये बोल रहे हैं कि ओवरसीज डेवलपमेंट एड इज रूट थ्रू NGOs. Our country also has a long history of civil society movements with organizations working in diverse fields such as health, education, community services, environment protection, sanitation, etc. With passage of time, foreign funds became flowing to domestic NGOs in India. Although work being done by NGOs has been commendable in diverse areas, it is not without criticism. जो मैंने बोला अभी, जो मैं आपको FCRA का जो बैकग्राउंड दे रहा था उसमें criticisms मैंने बताए. One of such criticisms related to issue of foreign donations. It has been argued that foreign funding makes NGOs accountable to fund providing donors and can pose risk to the sovereignty of the country. National security या national development पे threat आ सकता है, ठीक है.
Foreign contributions in India are regulated under FCRA. The objective of such law is to regulate the acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by certain individuals or associations or companies, and to prohibit acceptance and utilization of foreign contribution or foreign hospitality by for any activity detrimental to national interest and for matters connected therewith and incidental thereto. ये हो गया आपका FCRA का प्रियम्बल मान ले, ठीक है, कि FCRA का इंटेंट मान ले. FCRA का इंटेंट क्या बोलता है कि कोई भी पर्सन ऐसी फॉरेन हॉस्पिटैलिटी या फॉरेन कंट्रीब्यूशन ना ले जो डेट्रीमेंटल टू नेशनल इंटरेस्ट हो एंड फॉर मैटर्स कनेक्टेड देयर विथ एंड इंसिडेंटल देयर टू. मतलब कोई ऐसी हरकत फैलाने के लिए ना हो जिससे नेशनल इंटरेस्ट या नेशनल डेवलपमेंट को हार्म हो सके. ठीक है. DBS Trust is one of such organizations working in the field of preserving ecology and environment. It has been working on environmental issues since last few years and it is very vocal and prominent in raising issues. However, the trust is overzealous in its approach and has sometimes been accused of stalling crucial development projects in guise of protecting environment. जैसा मैंने बोला, कुछ लोग डेवलपमेंट जो जेन्युइन डेवलपमेंट प्रोग्राम्स होते हैं उसमें भी टांग अड़ाते हैं कि हम ये होने नहीं देंगे, ये एनवायरनमेंट को खतरा है वगैरह वगैरह वगैरह. ठीक है. और ओवर एंथुजियास्टिक होते हैं, नारे लगाते हैं, चक्का जाम करते हैं, आंदोलन करते हैं, जेल भरो ये वो. जेल भरो वर्ड आपकी मॉड्यूल में यूज़ किया हुआ है शायद. मेरी मॉड्यूल में जब तक मैं पढ़ता था तब तक तो वो जेल भरो वर्ड मॉड्यूल में था. आई डोंट नो अब SC आपके लॉ के मॉड्यूल में है या नहीं. तो ऐसी हरकतें करते हैं. It also receives substantial foreign donations from overseas agencies, trusts and its well-wishers, and such donations are main source of funding for carrying out activities of the trust. The office bearers of the trust met on 25th March 2023 to take stock of situation arising from amendments to FCRA law and rules in the recent past. मैंने बोला 2014 के बाद इस लॉ को बहुत ज़्यादा stringent कर दिया गवर्नमेंट ने. One of the office bearers, Mr. X, lamented about the increased compliance burden and changes in manner about receiving the foreign contributions. He was also worried that FCRA registration of their trust is going to expire in this year and modalities of renewing FCRA registration may have undergone change due to change in laws and regulations. On a closer perusal, he finds that FCRA registration of trust is going to expire on 31st December 2023. मतलब 31st December 2023 को मेरा जो FCRA रजिस्ट्रेशन है वो कैंसिल हो जाएगा. क्या मतलब? उसका मतलब ये है कि मैं ट्रस्ट नहीं रहूँगा? नहीं, मैं ट्रस्ट रहूँगा. सिर्फ और सिर्फ मैं फॉरेन फंड्स नहीं ले पाऊँगा 31st मार्च के बाद अगर मैंने रिन्यू नहीं करवाया तो. Another office bearer, Mrs. C, who is herself an activist, pointed out that the legislation has tightened noose around NGOs receiving foreign contributions, making it difficult for them to undertake certain type of work and incur certain expenses due to restrictions being made more stringent in respect of utilization of foreign contribution. मतलब ऐसा बोल रही है कि foreign contribution को utilize करने के जो laws है वो बहुत ज़्यादा और stringent हो चुके हैं. She is of the view that expenditure relating to writing and filing reports is directly related to trust's activity of preserving ecology and environment and may be out of the purview of regulatory restrictions. However, she is unsure about her stand and its legal implications. मतलब वो बोल रही है कि हम जो रिपोर्ट राइटिंग करते हैं वो हमारा जो ट्रस्ट का मेन एक्टिविटी है उससे रिलेटेड है. देखते हैं उसका क्या है. Mr. Y also agreed with both of them and opined that the field programs cannot be run without systems and procedures in place for supervision, management, policy design and strategy. He had heard about changes in rules relating to transfer of foreign contributions to other NGOs. About 5 years ago, the trust had transferred foreign contributions to a smaller NGO having better reach to the intended beneficiaries of the program run by the trust. The office bearers were in a fix whether foreign contributions received can be transferred to another NGO for प्रोग्राम्स ऑफ ट्रस्ट नाउ. मतलब 5 साल पहले मैंने अपने जो पैसे थे, मेरे पास कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन आया था, वो मैंने किसी और ट्रस्ट को पास ऑन किया था जिसकी रीच मेरे से ज़्यादा थी. वो ट्रस्ट छोटी थी बट उसकी रीच मेरे से ज़्यादा थी. अब उसे लगता है कि लॉ में कुछ अमेंडमेंट हो चुके हैं जिसकी वजह से मैं ये नहीं कर सकता. तो हमें बताना है कि लॉ में अमेंडमेंट हुआ है या नहीं. ड्यूरिंग मीटिंग मिस्टर Z also chipped in.
He also reminisces that there had been changes in rules pertaining to registration of charitable trust under income tax law. मतलब वो अब इनकम टैक्स की कहानी बताने लगा कि FCRA की बात तो ठीक है, इनकम टैक्स में भी चेंजेस है. In the recent past, a new procedure of registration was complied with by the trust in 2021 by filing an application in form 10A. मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि ट्रस्ट का इनकम टैक्स में रजिस्ट्रेशन का जो प्रोसेस है वो भी चेंज हो गया था और हमने उसको 2021 में ही कंप्लाई कर लिया था. However, he wants to be clear about the modalities of renewal of registration under income tax law whenever it falls due फॉर रिन्यूअल नेक्स्ट टाइम. मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि 2021 में तो करा लिया, लेकिन अब कब होने वाला है मुझे नहीं पता, तो मुझे उसके बारे में श्योर होना है. बिसाइड्स द ट्रस्ट इज प्लानिंग टू सेल ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर 23-24 एन इमूवेबल प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर द ट्रस्ट wholly for charitable purposes since last 5 years, and whole of the proposed net consideration is to be invested in acquiring another capital asset to be held wholly for the charitable purpose. मतलब एक asset थी जो मैंने होली फॉर द चैरिटेबल ट्रस्ट होल्ड करके रखी थी, उसको बेच के कोई और असेट लेनी है जो मैं चैरिटेबल ट्रस्ट के लिए ही यूज़ करने वाला हूँ. The trust has recently appointed the new auditor and the tax consultant CA Madhusudan. Mr. Z is of the view that they should consult their tax consultant in respect of these matters and for necessary guidance. मतलब कोई नया CA रखा है, ठीक है. CA Madhusudan has also to audit account of foreign contribution for the year 23-24 and has to certify various figures pertaining to brought forward contribution at the beginning of financial year, foreign contribution received during the year, interest accrued on the foreign contribution, balance of unutilized foreign contribution at the end of the financial year. Further, utilization of foreign contribution received for the purpose for which was registered was also to be certified. मतलब CA को बहुत सारी चीज़ें सर्टिफाइड करनी है. एक तो ओपनिंग बैलेंस क्या था, फिर फॉर द ईयर क्या मिला, इंटरेस्ट क्या था, यूटिलाइजेशन कौन सी अमाउंट पे हुआ, क्लोजिंग बैलेंस, और जिस पर्पस के लिए वो कंट्रीब्यूशन लिया था क्या उसी पर्पस के लिए उसका यूटिलाइजेशन हुआ या नहीं. बिसाइड्स ही इज ऑल्सो रिक्वायर्ड टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स ऑफ द ट्रस्ट बेस्ड ऑन द अबाउ केस स्टडी. आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. ठीक है, पढ़ लो 5 मिनट लेके, ये नया है, थोड़ा आराम से पढ़ो. वी विल मूव टू आंसर्स. ठीक है, फटाफट पढ़ लो. चलिए, लेट्स मूव टू MCQs. Mr. X is worried that FCRA registration of the trust is going to expire in the year 2023 itself. Which of the following statement is most appropriate regarding the renewal of registration of trust and receipt of foreign contributions under FCRA? अच्छा, ये क्वेश्चन एक और पिछली केस स्टडीज़ में आया हुआ है. कौन सा? ये रिन्यूअल वाला. रिन्यूअल की टाइम लिमिट क्या है FCRA के अंदर? जिस दिन आपका सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है उससे 6 महीना पहले आपको एप्लीकेशन फॉर रिन्यूअल कर देनी है. तो क्या बोला है? 6 महीना पहले एक्सपायरी ऑफ द रजिस्ट्रेशन, मतलब 6 महीना बिफोर December 23, क्योंकि December 23 को मेरा रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट एक्सपायर हो रहा है, मतलब June 23 तक मुझे एप्लीकेशन कर देनी है. तो सितंबर वाला ऑप्शन निकल जाएगा, सितंबर वाला ऑप्शन निकल जाएगा. अच्छा, दूसरा ऑप्शंस क्या है, पढ़ते हैं. Foreign contribution can only be received in an account designated as FCRA account to be opened in designated branch of State Bank of India at New Delhi. ये एक ऑप्शन है. और दूसरा, foreign contribution can only be received in an account designated as FCRA account to be opened at any designated branch of any scheduled bank. अच्छा, right option is SBI New Delhi. सेक्शन, एक मिनट, क्या है, सॉरी, हाँ, FCRA का रूल है, FCRA का रूल है कि आपको जो भी पैसा आ रहा है बाहर से वो SBI न्यू दिल्ली में आपको एक FCRA अकाउंट ओपन करना है और सारा पैसा उसी में रखना है और वहीं से यूटिलाइज करना है. सर ऐसा क्यों? बिकॉज अगर गवर्नमेंट को बाद में पता चला कि ये NGO या ट्रस्ट आड़े टेढ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है तो गवर्नमेंट को उस पैसों को फ्रीज करने में आसानी हो, इसलिए उन सारे पैसों को एक ही अकाउंट में रखने की बात है. ऐसा इंट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं. ऐसा ही लॉजिक होगा, ऐसा ज़रूरी है, मोदी जी ने ऐसा ही सोचा होगा, वी डोंट नो. हम याद रखने के लिए
ऐसा एक इंट्यूशन ड्रॉ कर रहे हैं कि भाई SBI न्यू दिल्ली क्यों, क्योंकि अगर गवर्नमेंट को फिर कॉलर पकड़ना हो किसका, NGO का, और उसके सारे पैसों को फ्रीज करना हो तो SBI न्यू दिल्ली जाएगा, सारे पैसे फ्रीज कर लेगी गवर्नमेंट, है ना। ऐसा इंट्यूशन ड्रॉ कर सकते हैं। मोदी जी ने ऐसा ही सोचा होगा, वी डोंट नो, ठीक है। हम ऐसा सोच रहे तो हमको एग्जाम में याद रहे, ठीक है। बात समझ में आई? तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्या 6 महीना पहले आपको एप्लीकेशन कर देनी है और सारा पैसा आपको रखना कहाँ पे है, SBI न्यू दिल्ली में FCR अकाउंट में, ठीक है। Mrs. C has put forth her view on certain expenditures. However, she is unsure about the legal footing of her view and related matters. बताओ। अच्छा, FCRA क्या बोलता है कि किसी भी फॉरेन कंट्रीब्यूटर से मुझे कंट्रीब्यूशन मिला, किसी भी पर्सन को, किसी भी कंट्रीब्यूटर से पैसा मिला किसी भी पर्सन को, तो उसको यूटिलाइज फॉर द पर्पस फॉर विच इट वॉज टेकन, मतलब जिस पर्पस के लिए उस पैसे को लिया था उसी पर्पस के लिए यूटिलाइज करना है। फॉर एग्जाम्पल, मैंने फॉरेन से पैसा लिया एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए, पुअर बच्चों के एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। तो मैंने क्या किया कि मैंने फॉर एग्जाम्पल 100 बच्चों के लिए टेक्स्ट बुक्स खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर दी, ठीक है। एक लाख रुपए की मैंने एड ली थी फॉर एग्जाम्पल। 1 लाख रुपए नहीं होगा, आया हुआ तो फॉरेन करेंसी में आया होगा, मतलब कन्वर्टेड 1 लाख रुपए थे, ठीक है। मैंने 95,000 की बुक्स खरीद के बेच दी, 95,000 की। तो 5,000 किधर गए सर? 5,000 जो लोग डिस्ट्रीब्यूट करने गए थे उन लोगों को मैंने कुछ पैसे दिए, मजदूरों को पैसे दिए, ठीक है, ये बुक्स के ट्रांसपोर्टेशन के पैसे दिए वगैरह वगैरह, मिसलिनियस खर्चे। क्योंकि अगर 1 लाख आएगा तो 1 लाख की बुक्स मैं नहीं बेच पाऊंगा नहीं, सॉरी, डोनेट नहीं कर पाऊंगा, कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस होगा। बात समझ में आ रही है? तो एक्ट ने एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस के ऊपर एक कैप लगा रखी है 20% या उससे कम। मतलब ये 1 लाख का कम से कम मुझे 80,000 का तो डिस्ट्रीब्यूशन करना ही है। मैं 20,000 तक का एडमिनिस्ट्रेटिव खर्चा कर सकता हूं, उससे ज्यादा नहीं कर सकता। एक्ट ने कैप लगा रखा है और एक्ट ने कुछ ऐसी चीजों को बोला हुआ है कि इन चीजों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मानेंगे। किन चीजों को? जो पेज 2.19 ऑफ मॉड्यूल में दिया है, जो मैं आपको दिखा देता हूं, रुको 1 मिनट। FCRA 2.19 किधर गया? 2.19 में था, जस्ट अ सेकंड ना। टू 2.15 सॉरी, 19 नहीं 15। हाँ, अमाउंट्स दैट कंस्टिट्यूट एज एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। उसमें कॉस्ट ऑफ राइटिंग एंड फाइलिंग रिपोर्ट्स को स्पेसिफिकली बोल दिया है कि एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है। मतलब ये उसी कैप में आ जाता है। कौन सी? 20% कैप में। भले ही फिर आप ऐसा बोल रहे हो कि नहीं ये तो हमारे एनजीओ के मेन पर्पस के लिए नहीं, गवर्नमेंट ने ऐसा मान लिया है कि इन चीज़ों को हम एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मानेंगे। मतलब उस 20% कैप में राइटिंग, रिपोर्ट राइटिंग और फाइलिंग भी उसी एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस में आएगी। तो अब ऑप्शंस देखते हैं। एक्सपेंडिचर ऑफ रेफर्ड बाय मिस्टर सी इज इन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। नहीं है, ये ऑप्शन नहीं आएगा। ठीक है, 2 ऑप्शंस, अब 2 बचे। इज नॉट इन द नेचर ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस। अच्छा, 50% की लिमिट नहीं है, तो मेरा ऑप्शन डी आएगा। बात समझ में आई? प्रोविजन क्या बोलता है कि अगर आप फॉरेन से पैसा ला रहे हो तो उसी पर्पस के लिए यूज करना जिस पर्पस के लिए वो पैसा लाए हो। अच्छा, उसमें ऐसा हो सकता है कि आप कुछ एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस इनकर करो, लेकिन टोटल डोनेशन का 20% से ज़्यादा आपका एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं होना चाहिए। सर, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस मतलब क्या? जो पेज नंबर 2.15 मॉड्यूल में मैंने आपको बताया, जो आप ध्यान में रखना, एग्जाम में आए तो आप यहीं से पढ़ के लिख देना। ठीक है, कौन कौन सा है? सैलरीज, वेजेस आ गया, एक्सपेंस टुवर्ड हायरिंग ऑफ पर्सोनल आ गया, कंज्यूमेबल्स लाइक इलेक्ट्रिसिटी, वाटर चार्जेस, अकाउंटिंग का एक्सपेंस आ गया, ये तो एडमिनिस्ट्रेटिव होता है। रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स आ गया। रनिंग एंड मेंटेनेंस ऑफ व्हीकल्स एंड ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस अलग होता है। अगर मैंने जो बुक्स का एग्जांपल दिया उसमें मैंने ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस खर्चा किया है, ठीक है, तो वो एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस नहीं है, वो मैंने ऐसे ही एग्जांपल दिया था।
ठीक है, लीगल एंड प्रोफेशनल चार्जेस, रेंट ऑफ प्रीमाइसिस वगैरह वगैरह, इसको एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस बोलेंगे। और ये कितना होना चाहिए? 20% या उससे कम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। बात समझ में आई? प्रोविजन समझ में आया? Which of the following statement is likely to be correct regarding discussion among trust members for proposed transfer of contribution for carrying out its program described under case study? अच्छा, पहले अगर मुझे फॉरेन से कंट्रीब्यूशन आया, मैं किसी ट्रस्ट को ट्रांसफर कर पाता था। अब सेक्शन 7 ऑफ FCRA में साफ प्रोहिबिट कर दिया कि आप ट्रांसफर नहीं कर सकते। प्रोहिबिट, फुल स्टॉप, खत्म, तो नहीं कर सकते। फॉरेन कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड कैन नॉट बी ट्रांसफर्ड टू एनी अदर पर्सन, इट इज इमटेरियल वेदर सच पर्सन इज FCRA रजिस्टर्ड और नॉट। प्रोहिबिट, फुल स्टॉप, काम खत्म, नहीं कर सकते तो नहीं कर सकते। मोदी जी ने बोला, बात समझ में आई? तो इसमें आर्ग्यू नहीं करते, मोदी जी से आर्ग्यू नहीं करते, ठीक है। Mr. Z, office bearer of the trust, has approached CA Madhusudan to seek his advice regarding modalities of renewal of registration of trust under income tax law. Which of the following advice rendered by CA Madhusudan is accordance with the provisions of the law? अच्छा, ट्रस्ट के रजिस्ट्रेशन अंडर इनकम टैक्स में क्या प्रोसीजर है? सेम टाइमलाइन, 6 months बिफोर द एक्सपायरी ऑफ योर रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपको फॉर्म 10AB भरना है। फॉर्म 10AB के साथ आप एक सेल्फ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ FCRA सर्टिफिकेट अटैच करोगे इफ यू आर रिक्वायर्ड टू बी रजिस्टर्ड अंडर FCRA। मतलब दो ट्रस्ट है, एक ऐसी ट्रस्ट है जो फॉरेन डोनेशंस लेती है, एक ऐसी ट्रस्ट है जो फॉरेन डोनेशंस नहीं लेती। तो जो ट्रस्ट फॉरेन डोनेशंस नहीं लेती उसको FCRA रजिस्ट्रेशन की ज़रूरत नहीं है, तो वो सिर्फ फॉर्म 10AB भरेगी। लेकिन अगर कोई ट्रस्ट है जो बाहर से डोनेशन लेती है तो उसको FCRA में रजिस्टर्ड होना पड़ेगा, तो उसका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट अटैच करना है। और अप्लाई किसको करना है? CIT को। बात समझ में आई? तो 10AB, तो 10B काट दो, 10B काट दो, 6 months। However, copy of registration under FCRA 2010 is not mandatory, ये ऑप्शन नहीं है, तो ऑप्शन B आएगा। बहुत ईजी है, देखो आप लोग MCQs, सिर्फ आपको अवेयरनेस होना चाहिए कि लॉ का प्रोविजन क्या है, ठीक है। सर्टिफिकेशन फ्रॉम चार्टर्ड अकाउंटेंट इज रिक्वायर्ड बाय DBS ट्रस्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ सर्टेन मैटर्स अंडर FCRA डिस्क्राइब्ड अंडर केस स्टडी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू? अच्छा, हर एक ट्रस्ट या NGO जो फॉरेन कंट्रीब्यूशंस लेता है उसको FC4 में एक एनुअल रिटर्न भरना रहता है। जैसे कंपनी को अपना एनुअल रिटर्न भरना रहता है, वैसे एक ट्रस्ट को जो फॉरेन कंट्रीब्यूशन लेती है उसको FC4 करके एक फॉर्म भरना है, एनुअल रिटर्न भरना है, ठीक है। उसमें क्या क्या बातें देनी है? इनकम एक्सपेंडिचर, बैलेंस शीट, रिसीट एंड पेमेंट अकाउंट, मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एज सच, प्लस फॉरेन कंट्रीब्यूशन की डिटेल्स, मतलब ओपनिंग कितना था, फॉर द ईयर कितना आया, इंटरेस्ट क्या था, यूटिलाइजेशन क्या किया और क्लोजिंग बैलेंस क्या है, और यूटिलाइजेशन जहाँ पे करना चाहिए था वहाँ पे किया या नहीं। बात समझ में आई? एक प्रोवाइजो है कि फॉरेन कंट्रीब्यूशन इज 0, CA का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। मतलब फॉरेन कंट्रीब्यूशन अगर कुछ नहीं है, आप FCRA में रजिस्टर्ड हो लेकिन इस साल आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन नहीं लिया है, तो आपको CA के सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। एनुअल रिटर्न FC4 तो भी भरना है, बट सर्टिफिकेट की ज़रूरत नहीं है। ये प्रोवाइजो है, ठीक है। अब पढ़ते हैं। Such certification forms part of FC4, FC2 वाले दो ऑप्शंस काट दो। Which is prescribed annual return. It has to be uploaded duly accompanied by balance sheet, statement of receipt and payment certified by CA. If there is no receipt or utilization of FC during the year, certificate of CA is not required and audited statement of accounts are not required to be uploaded. However, submission of nil return is mandatory. मतलब nil return भरना है, बट CA का सर्टिफिकेट नहीं लगेगा। अब वो नहीं लगेगा तो ऑडिटेड फिनेंशियल भी नहीं लगेगा, क्योंकि एज सच आपने कोई फॉरेन कंट्रीब्यूशन लिया ही नहीं है, तो आपकी एक्टिविटीज़ बहुत कम होगी या मिनिमल होगी, ठीक है। यहाँ पे क्या है? इफ देर इज नो रिसीट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन, सर्टिफिकेट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ऑडिटेड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट एंड FC4 आर नॉट रिक्वायर्ड। देखो FC4 तो रिक्वायर्ड है ही, वो निल में भरना है। इस ऑप्शन में देखो यहाँ तक उन लोगों ने सही लिखा, लेकिन यहाँ पे इन लोगों ने गलत लिख दिया कि FC4 इज नॉट रिक्वायर्ड। FC4 इज रिक्वायर्ड, निल भरना है, लेकिन भरना है, ठीक है। सिर्फ और सिर्फ ऑडिटेड फिनेंशियल स्टेटमेंट्स नहीं देने हैं और
आपका सीए का सर्टिफिकेट नहीं देना है, ये सिर्फ इतना प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो में नील रिटर्न नहीं भरना है, वो नहीं लिखा, तो नील रिटर्न तो भरना ही है, ठीक है। ये आपके 5 एमसीक्यूज हो गए। देखो एमसीक्यूज का लेवल एज सच बहुत चिंदी था, बहुत चिंदी, लेकिन एफसीआरए कभी लाइफ में पढ़ा ही नहीं तो कैसे आप लिखोगे, ठीक है। तो हमने मोटा मोटी एफसीआरए के जितने भी प्रोविजंस थे उसको डिस्कस कर लिया। सॉरी यार, ये तबीयत। Certain matters have been highlighted in the case study which may have ramifications for renewal of registration of trust under FCRA. At the time of applying for renewal of registration of a person under FCRA, central government is empowered to make inquiry in respect of wide range of matters. Discuss those matters. Do the matters highlighted in the case study fall among such matters? देखो ध्यान दो, यहीं पे आ जाओ। मैंने FCRA में रजिस्ट्रेशन ले लिया, मैं अपना काम करता क्या, ठीक है। मैं गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आया, लेकिन मैं आड़े टेढ़ी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व था, मैं गवर्नमेंट के हाथ में नहीं आया। अब मैं गया हूँ FCRA का अपना रिन्यूअल कराने। क्या कराने? रिन्यूअल कराने। तो गवर्नमेंट को अगर मेरी एक्टिविटीज़ पे डाउट होता है, गवर्नमेंट को अगर मेरी एक्टिविटीज़ पे डाउट होता है, तो गवर्नमेंट के पास पावर है कुछ मैटर्स पे इंक्वायरी करने का। वो कौन सी मैटर से, ध्यान देना। द सेंट्रल गवर्नमेंट में बिफोर रिन्यूइंग द सर्टिफिकेट मेक सच इंक्वायरी एज इट डीम्स फिट टू सेटिस्फाई इटसेल्फ दैट सच पर्सन हैज फुलफिल्ड ऑल द कंडीशंस स्पेसिफाइड इन द 12 सबसेक्शन 4। द कंडीशंस आर, मतलब मुझे ऐसी इंक्वायरी करनी है कि 12 सबसेक्शन 4 की सारी कंडीशंस मैंने सेटिस्फाई की है। अब 12 सबसेक्शन 4 की कौन सी कंडीशंस है? सबसे पहली, जो पर्सन है रजिस्ट्रेशन लेने जा रहा है वो बेनामी या फिक्टिशियस तो नहीं है, मतलब मेरी कोई ट्रस्ट है ही नहीं, मेरा कोई एनजीओ है ही नहीं, मैंने सिर्फ नाम रखा है, एक ऑफिस रखा है, बोर्ड रखा है, कोई एक्टिविटीज़ है ही नहीं, बस पैसा आता है, मैं कहीं पे डाइवर्ट कर देता हूँ या कुछ आड़ी टेढ़ी एक्टिविटीज़ करता हूँ। दूसरा, एंगेज्ड इन रिलीजियस कन्वर्जन तो नहीं है, क्या कोई ऐसी ऑर्गेनाइजेशन तो नहीं है जो रिलीजियस कन्वर्जन्स कराती है। क्रिएट्स कम्युनल टेंशन और डिसहार्मनी, मतलब ये एनजीओ या ट्रस्ट ऐसी कोई एक्टिविटीज़ तो नहीं कर रही जिससे कम्युनल डिसहार्मनी हो या कम्युनल टेंशन्स हो। गिल्टी ऑफ मिसयूज ऑफ फंड्स और डाइवर्जन ऑफ फंड्स, ये कोई ऐसा पर्सन तो नहीं विच हैज़ बीन प्रूवन गिल्टी ऑफ मिसयूज और डाइवर्जन ऑफ फंड्स। सेडिशन और वायलेंस, ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है जो सेडिशन या वायलेंस कराती है। सेडिशन मतलब गवर्नमेंट के खिलाफ उकसाना, वायलेंस करवाना। यूज़ ऑफ फंड्स फॉर पर्सनल यूज़ और अनडिज़ायरेबल पर्पस, ऐसी कोई हरकतें नहीं कर रहा। कॉन्ट्रावेंशन ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एक्ट, मतलब इस पर्सन ने कहीं पहले प्रोविजंस ऑफ एक्ट का कॉन्ट्रावेंशन तो नहीं किया। प्रोहिबिटेड टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन, ये कोई ऐसा पर्सन तो नहीं है जो प्रोहिबिटेड है अंडर दिस एक्ट टू एक्सेप्ट फॉरेन कंट्रीब्यूशन। तो ये कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो इन चीज़ों में फॉल करता है। सबसे पहली इंक्वायरी गवर्नमेंट ये करेगा क्या, कि कोई ऐसा पर्सन तो नहीं जो इन चीज़ों में फॉल करता है। सर इन चीज़ों में मतलब इन चीज़ों में, एग्जाम में आप ये लेके जाने वाले हो, ठीक है, तो मैं तो आपको आइडिया दे रहा हूँ, अगर आया तो लिख लेना। अच्छा, इसमें से एमसीक्यू आया तो भी आप लिख सकते हो, क्यों? आपको प्रोविजन का आइडिया आ गया। अब तक अभी आप एफसीआरए नहीं पढ़ा था, आपको एफसीआरए का आइडिया आ गया कि एफसीआरए का इंटेंट क्या है, एफसीआरए में कहाँ कहाँ पे रजिस्ट्रेशन की बातें हो रही है, रिन्यूअल की बातें हो रही है, ये सब चीज़ें, ठीक है। द पर्सन मेकिंग एन एप्लीकेशन हैज़ अंडरटेकन रीजनेबल एक्टिविटी इन इट्स चूजन फील्ड फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, मतलब ये पर्सन ने पहले भी काम किया हुआ है। देखो एफसीआरए का लाइसेंस लिया, पैसे लिए बाहर से, तो कुछ काम भी किया है, ऐसा नहीं कि पैसे लेके रख दिए, कुछ काम नहीं किया और अब रिन्यूअल के लिए आ गया। पर्सन इज मेकिंग एन एप्लीकेशन हैज प्रिपेयर्ड अ रीजनेबल प्रोजेक्ट फॉर द बेनिफिट ऑफ सोसाइटी, मतलब उसके पास कोई प्रोजेक्ट है हाथ में जिससे वो सोसाइटी का बेनिफिट कर सके। फॉर एग्जाम्पल मैं स्कूल बनवा रहा हूँ, ठीक है, तो मेरे पास स्कूल का प्रोजेक्ट है हाथ में, ठीक है। द पर्सन बीइंग एन इंडिविजुअल, सच इंडिविजुअल हैज नाइदर बीन कन्विक्टेड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइमिंग इन फोर्स नॉर एनी प्रोसिक्यूशन फॉर एनी ऑफेंसेस पेंडिंग अगेंस्ट हिम, मतलब अगर ये कोई इंडिविजुअल है तो कन्विक्टेड भी नहीं है और प्रोसिक्यूटेड भी नहीं है। अदर देन इंडिविजुअल है तो कोई उसके डायरेक्टर्स या ऑफिस बेरर कन्विक्टेड नहीं है या प्रोसिक्यूटेड नहीं है, ठीक है। तो ये हो गई कन्विक्शन या प्रोसिक्यूशन की बात। द एक्सेप्टेंस ऑफ फॉरेन कंट्रीब्यूशन बाय द एसोसिएटेड पर्सन इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट
sovereignty or integrity of India, security, strategic, scientific or economic interest of the country, public interest, freedom or fairness of election of any legislature। ये 2024 का इलेक्शन ही चलने वाला है, ठीक है, तो उसमें कोई बाहर का पैसा यहाँ पे ला के वोट नहीं खरीद रहा, ऐसी हरकतें होती है यार, होती है। फ्रेंडली रिलेशन विथ एनी फॉरेन स्टेट, पाकिस्तान में बम मार के आओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन यूएस में मत जाना, यूएस में तो कोई नहीं जाएगा, इजराइल तक भी कोई नहीं जाएगा। हार्मनी बिटवीन रिलीजियस, रेशियल, सोशल, लिंग्विस्टिक, रीजनल ग्रुप्स, कास्ट एंड कम्युनिटीज़, मतलब ये पैसा बाहर से आ रहा है, ठीक है, तो इन चीज़ों पे कोई हार्मफुल इफेक्ट नहीं आना चाहिए। क्या? देश की इंटेग्रिटी या सॉवरेनिटी पे नहीं आना चाहिए, सिक्योरिटी, स्ट्रैटेजिक, साइंटिफिक और इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे नहीं आना चाहिए, पब्लिक इंटरेस्ट पे नहीं आना चाहिए, फ्रीडम और फेयरनेस ऑफ इलेक्शन पे नहीं आना चाहिए, वगैरह वगैरह बातें। Acceptance of foreign contribution shall not lead to incitement of any offense, shall not endanger the life or physical safety of any person। मतलब गवर्नमेंट बेसिकली आपको FCRA लाइसेंस रिन्यू करने से पहले कुछ चीज़ों के बारे में श्योर होना चाहती है। सबसे पहला, पर्सन के बारे में कुछ चीज़ों पे श्योर होना चाहती है। दूसरा, वो बंदा प्रोसिक्यूटेड या कन्विक्टेड तो नहीं है, उस बारे में श्योर होना चाहती है। तीसरा, वो पैसा आने से देश पे कोई हार्म नहीं होगा, उस चीज़ के बारे में श्योर होना चाहती है। और चौथा, किसी इंडिविजुअल पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा या कोई ऑफेंस नहीं होगा, इस चीज़ के बारे में श्योर होना चाहती है, ठीक है। द मैटर्स हाईलाइटेड इन द केस स्टडी पर्टेन टू एनवायरमेंटल एजिटेशन टर्निंग वायलेंट, ठीक है। There is also allegations of using foreign contribution by a trust member for personal jaunts which is in the nature of personal gains, तो इस मैटर से रिलेट भी करता है। दूसरा क्वेश्चन है ना कि डिस्कस अगर कोई मैटर की स्टडी में है जो इन मैटर में फॉल करती है तो करती है, ठीक है। बात समझ में आई? देखो, मोटा मोटी आइडिया लेना है आपको। IBS का सबसे बड़ा बेनिफिट यही है कि कंसेप्चुअली इफ़ यू आर क्लियर, आपको एक नेचुरल अंडरस्टैंडिंग बैठ चुकी है, तो यू कैन गो कॉन्फिडेंटली एंड राइट, बिकॉज फिर कॉपी करना है, ठीक है। यही चीज़ अगर CA फाइनल लॉ होता पहले का तो रटवाता मैं कि ये सब पॉइंट्स याद रखो। अब याद रखना ही नहीं है, यू आर जस्ट सपोज टू मेक श्योर दैट यू अंडरस्टैंड, और फिर आप लिख सकते हो, ठीक है। दूसरा, ऑन द बेसिस ऑफ ओवरऑल डिस्क्रिप्शन ऑफ द केस स्टडी व्हाट फैक्टर्स शुड बी कंसिडर्ड बाय CA मधुसूदन व्हाइल असेसिंग ऑडिट रिस्क ऑफ द DBS ट्रस्ट। अच्छा, जब भी ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आए, ये ऑडिट की भी बात कर रहा हूँ, IBS की भी बात कर रहा हूँ, जब भी ऑडिट रिस्क का क्वेश्चन आए तो उसको 3 पार्ट में जवाब देना है, इनहेरेंट, कंट्रोल और डिटेक्शन रिस्क में, ठीक है, क्योंकि ऑडिट रिस्क के कंपोनेंट्स यही है। इनहेरेंट और कंट्रोल रिस्क वो रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट, और उसके साथ डिटेक्शन रिस्क जोड़ दो तो ऑडिट रिस्क आ जाता है, ठीक है। तो हमेशा ऑडिट रिस्क का जब क्वेश्चन आता है, यू आर सपोज टू आंसर इन 3 पार्ट्स, इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क एंड डिटेक्शन रिस्क। इनहेरेंट रिस्क में क्या है? मेरी ट्रस्ट को सिग्निफिकेंट फॉरेन फंड्स आते हैं, सिग्निफिकेंट फॉरेन फंड्स आते हैं, तो FCRA का रेगुलेशन इसके ऊपर बहुत टाइट होगा। इट मेक्स दिस ट्रस्ट इनहेरेंटली रिस्की। दूसरा, इसका अप्रोच ओवर जीलस है, हो सकता है कि ऐसी कोई हरकतें कर दे जिससे FCRA का नॉन कंप्लायंस हो जाए, जिससे हो सकता है कि ट्रस्ट का लाइसेंस कैंसिल हो जाए, हो सकता है उससे फिनेंशियल स्टेटमेंट्स पे इम्पैक्ट आ जाए, क्योंकि जब ऑडिट रिस्क की बात आ रही है तब आ रही है ट्रस्ट के ऑडिट की बात, ट्रस्ट के ऑडिट की बात आ रही है तो आ रही है फिनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात, और हमें सिर्फ फिनेंशियल स्टेटमेंट्स के कंटेक्स्ट में देखना है, ठीक है। कंप्लायंस विद FCRA, क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस होल्डर्स को देखना है कि भाई जो ऑफिस होल्डर्स है उसमें कोई शैतान आदमी नहीं है जो देश के खिलाफ कुछ चीज़ें करना चाहता है, क्रेडिबिलिटी ऑफ ऑफिस होल्डर्स। रिस्क ऑफ इन्वॉल्वमेंट इनटू मनी लॉन्ड्रिंग, सबसे बड़ा रिस्क, ट्रस्ट और NGOs के नेटवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग बहुत आसानी से और बहुत ज़्यादा होता है हमारे देश में। ट्रस्ट और NGOs के नेटवर्क से मनी लॉन्ड्रिंग, ब्लैक एंड वाइट करना, ठीक है। तो रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग, तो ये तो इनहेरेंट रिस्क हो गया किसका? इस ट्रस्ट का। कंट्रोल रिस्क, ट्रस्ट को अगर अपनी एक्टिविटीज़ ढंग से करनी है तो उन्होंने बहुत सारे कंट्रोल्स बिठाए होंगे, ऑपरेशनल, फिनेंशियल कंट्रोल्स। हमें उन कंट्रोल्स को असेस करना है कि इससे क्या ये लोग अपना काम सही कर रहे हैं या नहीं, और दूसरा कंप्लायंस विद FCRA कर रहे हैं नहीं, और तीसरा इसके जो फिनेंशियल स्टेटमेंट्स है वो ढंग से बन रहे हैं या नहीं। असेसमेंट ऑफ कंट्रोल रिस्क, दैट कंट्रोल्स इन प्लेस एंड आर ऑपरेटिंग इफेक्टिवली फॉर कंप्लायंस ऑफ प्रोविजंस ऑफ FCRA। देखो, अगर FCRA का कंप्लायंस नहीं किया तो पूरी ट्रस्ट गई पानी में छपैक, ठीक है। तो सबसे बड़ा जो इम्पैक्ट होता है वो ड्यू टू नॉन कंप्लायंस होता है।
तो इसलिए FCRA के कंप्लायंस पे ही ज़्यादा फोकस है, ठीक है। इस क्वेश्चन का डिटेक्शन रिस्क, ट्रस्ट का ऑडिट मैं पहली बार कर रहा हूँ, ठीक है। इस क्वेश्चन में ऐसा बोला है, ट्रस्ट का ऑडिट मैं पहली बार कर रहा हूँ, तो हो सकता है मेरी कोई प्रोसीजर्स ऐसी हो जो छूट जाए, ठीक है। तो डिटेक्शन रिस्क हाई कंसिडर करके मुझे चलना पड़ेगा, इतना ही बोला है, ठीक है। तो इनहेरेंट रिस्क, कंट्रोल रिस्क, डिटेक्शन रिस्क, तीनों कहीं ना कहीं नॉन कंप्लायंस विद FCRA के आजू बाजू ही घूमती है, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन क्या था? Assume that during the course of audit, CA Madhusudan suspects that there are non-compliance by NGO in relation to some aspects of FCRA. How should he proceed? अच्छा, इसमें SA 250 लगाना है। SA 250 क्या बोलता है कि जब आपको कोई सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस मिले, सस्पेक्टेड नॉन कंप्लायंस, तो आपको क्या करना है? सबसे पहले तो मैनेजमेंट से डिस्कस करो, मैनेजमेंट से डिस्कस करो कि भाई मुझे लगता है कि आपने इस लॉ का इस जगह पे नॉन कंप्लायंस किया है, आप बताओ क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ठीक है या नहीं। मैनेजमेंट ऐसा बोल सकता है कि नहीं नहीं सर, आपकी अंडरस्टैंडिंग ठीक नहीं है, इस लॉ का ये इंटरप्रिटेशन है जिसकी वजह से हमने ये एक्शन लिया था, जिसकी वजह से इसको नॉन कंप्लायंस नहीं मानते। या फिर मैनेजमेंट ये इंफॉर्मेशन नहीं दे पाता कि वो नॉन कंप्लायंस नहीं है। मैनेजमेंट डज नॉट प्रोवाइड सफिशिएंट इंफॉर्मेशन दैट सपोर्ट्स अबाउट द कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस। अगर मैनेजमेंट ऐसा बोल देता है कि नहीं नहीं सर, आप इस लॉ का इंटरप्रिटेशन गलत कर रहे हो, इसका ऐसा इंटरप्रिटेशन होगा जिससे हमने ये एक्शन लिया, जिससे ये नॉन कंप्लायंस नहीं है, अगर मैनेजमेंट ये चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाता तो क्या करना है? असेस करना है उसका इम्पैक्ट ऑन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। अगर मैनेजमेंट ये प्रूव नहीं कर पाता कि उन लोगों ने कंप्लाई किया है, लेकिन कोई मटेरियल इम्पैक्ट नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे, तो एक लेवल पे जाने दे सकते हैं। लेकिन अगर उस नॉन कंप्लायंस का फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे मटेरियल इम्पैक्ट है तो आपको लीगल एडवाइस देना है। क्यों सर? बिकॉज मैनेजमेंट ये एस्टैब्लिश नहीं कर पाया कि उन लोगों ने लॉज एंड रेगुलेशंस का कंप्लायंस किया है, और एज सच ऑडिटर इज नॉट अ लीगल एक्सपर्ट, एज सच ऑडिटर इज नॉट अ लीगल एक्सपर्ट। तो मुझे अगर ऐसा सस्पिशन है कि मैनेजमेंट ने कोई लॉज एंड रेगुलेशंस का नॉन कंप्लायंस किया है, ठीक है, और मैनेजमेंट समझा नहीं पा रहा मुझे, तो मुझे लीगल एडवाइस लेनी पड़ेगी ना। क्यों? मटेरियल इंपैक्ट है, ठीक है। लीगल एडवाइस से भी बात नहीं बनी। इफ सफिशिएंट इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी ऑब्टेन, कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन ओपिनियन। आप डिस्क्लेमर ऑफ ओपिनियन दे दो, या फिर आप एडवर्स ओपिनियन दे दो, या फिर आप मॉडिफाइड ओपिनियन दे दो, ठीक है। जैसा जितना इंफॉर्मेशन वैसा आपका रिपोर्ट, प्लस कंसिडर द इम्पैक्ट ऑन रिस्क असेसमेंट एंड रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस। देखो, फ्रॉड में, नॉन कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशंस में, और इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी में, 3 जगह पे वापस से, फ्रॉड में, नॉन कंप्लायंस ऑफ लॉज एंड रेगुलेशंस में, एंड इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी में, एक वर्ड याद रखना, सब्सिडी। अगर मैनेजमेंट ने प्लानिंग स्टेज में आपको ऐसा बोला था कि हमारे उधर कोई फ्रॉड नहीं हुआ, और आपको ऑडिट करते टाइम फ्रॉड मिला, उसका मतलब मैनेजमेंट ने आपको इनिशियली झूठ बोला था, तो आप वापस से सब्सिडी में नीचे आ गए। दूसरा, मैनेजमेंट ऐसा बोल रहा है कि हमने सारे लॉज एंड रेगुलेशन से कंप्लाई किया है, फिर आपको नॉन कंप्लायंस मिला, ठीक है, मतलब मैनेजमेंट का यहाँ पे जो असर्शन था वो गलत था, वापस सब्सिडी में नीचे। मैनेजमेंट ये बोलता है कि हमारे इंटरनल कंट्रोल स्ट्रांग है, ये हमारा वॉक थ्रू प्रोसीजर किया आपने, ठीक है, फिर मुझे ऐसा पता चला कि इंटरनल कंट्रोल्स ठीक नहीं है, सब्सिडी से वापस नीचे, तो मेरा जो इनिशियल रिस्क असेसमेंट है ना, वो चेंज हो जाएगा। अगर पहले मैंने ऐसा सोचा था कि फ्रॉड नहीं है, फिर फ्रॉड मिला, तो यहाँ पे मेरा जो रिस्क असेसमेंट लो था वो हाई हो जाएगा। सेम गोज विथ कंप्लायंस विद लॉज एंड रेगुलेशन, सेम गोज विथ इंटरनल कंट्रोल डेफिशिएंसी, तो रिस्क असेसमेंट पूरा चेंज। और दूसरा, रिलायबिलिटी ऑफ रिटर्न रिप्रेजेंटेशंस, मैनेजमेंट लिख के बोल रहा है कि हमारे उधर कोई फ्रॉड नहीं हुआ, फिर भी हो रहा है, तो जो रिटर्न रिप्रेजेंटेशन है वो भी गलत है, तो ये सब्सिडी ध्यान रखना। सर इतना लंबा ज्ञान क्यों दिया? अगर ऑडिट में भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो लास्ट में ये लिख के आ जाने का, आपका जो एग्जामिनर होगा वो खुश हो जाएगा, वो बोलेगा अच्छा मालव सर से पढ़ा था ऐसा, ठीक है सर, ज़्यादा हो गया, ठीक है सॉरी। चलो लास्ट क्वेश्चन, What should be the proper advice of CA Madhusudan to Mr. Z regarding implications of the proposed sale of the capital asset and acquisition of another capital asset described under case study? बहुत सिंपल है, टैक्स में ट्रीटमेंट। अगर कोई कैपिटल एसेट थी
जो आपने होली ट्रस्ट की एक्टिविटीज़ के लिए एम्प्लॉयड रखी थी और वो आपने ट्रांसफ़र कर दी, ठीक है, पैसा आया, पैसे से आपने दूसरी कैपिटल एसेट खरीदी, ठीक है। अगर जो पैसा आया वो पूरा आपने दूसरी एसेट खरीदने में यूज़ कर दिया, फुल कंसिडरेशन यूटिलाइज्ड फॉर एक्विजिशन ऑफ अनदर एसेट, तो पूरा कैपिटल गेन एग्जेम्प्ट हो जाएगा, सिंपल। लेकिन ओनली पार्ट कंसिडरेशन आपने यूज़ किया है, सिर्फ पार्ट कंसिडरेशन, तो कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट माइनस कॉस्ट ऑफ ओल्ड एसेट, इतना कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट होगा, बाकी टैक्सेबल हो जाएगा। बहुत सिंपल ट्रीटमेंट है लॉ में, ठीक है, यही लिखा है। वेयर ओनली अ पार्ट ऑफ द नेट कंसिडरेशन इज यूटिलाइज्ड फॉर एक्वायरिंग अ न्यू कैपिटल एसेट, सो मच ऑफ द कैपिटल गेन एज इक्वल टू द अमाउंट इफ एनी बाय विच अमाउंट सो यूटिलाइज, मतलब कॉस्ट ऑफ न्यू एसेट एक्सीड्स द कॉस्ट ऑफ ट्रांसफर्ड एसेट, तो उतना कैपिटल गेन आपका एग्जेम्प्ट हो जाएगा, बाकी का टैक्सेबल। मुझे आपसे सॉरी बोलना पड़ेगा क्योंकि मेरी हालत बोलने में बहुत ख़राब है, तो अभी एक केस स्टडी पे रुको, कल ये वाली कराऊंगा, बहुत बड़ी केस स्टडी है, अभी मेरी हालत ख़राब हो जाएगी बोलते बोलते। पूरी एमटीपी करा दूंगा, स्टूडेंट्स जर्नल का पार्ट 3 भी करा दूंगा, आईबीएस की 1.5 दिन की स्ट्रैटेजी भी दे दूंगा, मेरे पे भरोसा रखो। आप अभी 2-3 दिन में अपना एफआर पे जंप करोगे, फिर एएफएम पे जंप करोगे, मैं बैक एंड में आपका आईबीएस करता रहूँगा और पोस्ट भी करता रहूँगा, ठीक है। आईबीएस एग्ज़ाम के 1.5 दिन पहले यू विल बी हैविंग एवरीथिंग हैंडी, ठीक है, डोंट वरी अबाउट इट। अभी यार थोड़ा मेरे को सॉरी, ठीक है, फटाफट से कल दूसरी केस स्टडी में अपलोड करता हूँ और बाय 2-3 डेज़ मैं आपको पूरा ही एमटीपी दे दूँगा, ठीक है। सॉरी गाइस, अगेन टेक केयर।